کیا تم ٹکٹ الیکشن لڑے ہو؟ سر آج افطاری کیسے لگا ہے؟ افطاری کیسے لگا ہے؟ یہ ہر روز میں اسی طرح کر رہا ہوں افطاری. کورٹ کے پر کاٹے جائیں تاکہ یہ کسی طرح جس طرح اس نے ایک دفعہ پہلے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہٹوا دیا تھا, بریف کیس چلائے تھے 99 میں, تب بھی اس کے اوپر کیس ہونے لگا تھا, کنٹیمپٹ کا لگنے لگا تھا نواز شریف پہ, تو اس نے کیونکہ اگر کنٹیمپٹ لگ جاتا ڈسکوالیفائی ہو جاتا, اس لیے نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا. یہ دوسرا حملہ کر رہا ہے اور ہم ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بڑی انرجی ہے, ابھی روزے کھولنے سے پہلے بھی اتنی انرجی ہے, تو اس کا مطلب کہ روزے کے بعد تو اور ہی انرجی آ جائے گی. میری بات اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دینی فرض بھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اللہ قرآن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو, اور یہ آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے. تحریک اب اس کو تبلیغ کرنا ہے. دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے. اگر سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہو ساری دنیا آپ کو گالیاں نکالتی ہے. اگر آپ سیاست انسانیت اور انصاف کے لیے کرتے ہو عبادت بن جاتی ہے. سارے اللہ کے منٹ رہ گئے, سن لو میری بات. آپ دیکھیں یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں, وہ میں نے اس کو کہا ہوا اس کو تیار کیا. پیمفلٹ سے آپ نے اپنے جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے. ایک رائے میں تبلیغ ہے, ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں. ہم لوگ سمجھ چکے ہیں, اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیہاتوں میں انقلاب آ گیا انشاءاللہ. ماشاءاللہ خان صاحب کارکنان کے درمیان بیٹھے ہیں, افطاری کر رہے ہیں. بڑے مشکل خان صاحب وہ بھی ہمارے مشکل وقت ہیں. خان صاحب نے اپنی رہائش گاہ زمان پارک میں کارکنان کے ساتھ افطاری کی. افطاری میں انہوں نے کارکنان کے ساتھ خوب گپ شپ لگائی اور کارکنان نے ان کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا. خان صاحب 20 سے 25 منٹ تک کارکنان کے درمیان رہے اور کارکنان نے کھل کر جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی. وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. خان صاحب کے 25 سال پرانے جو دوست تھے ان کے, وہ بھی وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے. خان صاحب کے ورکر وہاں پہ تھے, خواتین تھی, تمام اقلیتی پارٹیوں کے لوگ تھے. بہت سے ورکر وہاں پہ آئے تھے دور دراز علاقوں سے. کارکنان اتنے خوش تھے, پرجوش تھے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہماری جو ایک خواہش ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم عمران خان جیسے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے کارکنان کے جذبات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے 20-19 روزے جتنے بھی رہ گئے تو میں کارکنان کے ساتھ روزانہ افطاری کروں گا زمان پارک میں لاہور میں. اور کارکنان اتنے خوش تھے, کارکنان کافی خوش تھے. اور عمران خان نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں یہاں پہ زمان پارک میں کارکنان کے ساتھ افطاری کروں گا. اور یہ مناظر جو ہیں وہ آپ اپنی آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں. آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں. اور عمران خان کافی خوش تھے. ہم آپ کو آگے دکھائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کارکنان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی اور کارکنان کی کیا رائے تھی. لیکن آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل آئی کے ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ سچ کا سفر آئی کے ٹوڈے سے آپ تک پہنچ سکے.
सके। और कारकुनान ने यहाँ पे हमारे साथ जो बातचीत की वो भी हम आपको दिखाएंगे। इमरान खान देखें कितने खुश थे कारकुनान के साथ बैठकर, और इमरान खान ने इस बात का भी इजहार किया कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत अफ्तारी है कि मैं अपने वर्कर के साथ बैठ के अफ्तारी कर रहा हूँ। और 300 के करीब 300 से ज़ायद लोग थे वहाँ पे मौजूद थे, वो कारकुनान उनके साथ, जिन्होंने अफ्तारी की और खान साहब के साथ खूब गपशप लगाई। ऐसे आपको पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि कोई ऐसे लीडर जो है वो अपने वर्कर के साथ बैठ के अफ्तारी करता है और वर्कर के साथ बैठ के वो बातचीत करता है। ये देखें इमरान खान को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो किस तरह कारकुनों के दरमियान बैठे हैं और कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कारकुनान के साथ गपशप लगा रहे हैं। आप देखें कि वो लंदन में बैठे होते हैं लीडर, और यहाँ पे वर्कर बिरयानी के डब्बे उठा के भागते फिरते हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो आवाम में रहता है और आवाम के साथ उठकर बैठकर बात करता है। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि वर्कर के साथ खान साहब ने क्या गुफ्तगू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या कहते हैं। वो सब मनाज़र हम आपको अपनी IK टुडे पे दिखाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल IK टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मौजूद कारकुनान क्या कहते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा अफ्तारी था, खान साहब मौजूद था, कारकुनान के दरमियान था, अफ्तारी किया, खान साहब ने बात भी सुना। क्या कहना चाहता है इस खुशी में? देखो नूर, ये खान साहब ने इनिशिएटिव लिया कि मैं अपने वर्करों के साथ अफ्तारी करूँगा। तो माशाल्लाह अब रोज़ हमारा कोई 300-400 वर्कर होता है, तो जिसमें खान साहब खुद उनके दरमियान बैठते हैं और ये अफ्तारी या वर्कर सवाल जवाब करते हैं, अपना बताते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी भी जमात में इस तरह का सिस्टम नहीं है कि लीडर सेकेंडरी और थर्ड लीडरशिप के अलावा आम वर्करों के साथ बैठ के अफ्तारी करता है और उनको अफ्तारी करवाता भी है। तो इज़ ऑल अबाउट खान। तो वर्कर मेरे ख्याल में बहुत खुश हैं, सब लोग आज खुश हैं। अफ्तारी कैसे लगा आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अफ्तारी में ख़ास बात ये थी कि खान साहब ने अपने वर्करों को बुलाया, हर मज़हब के, सिख, मसीही, हिंदू, मुसलमान, तमाम जो तबके के लोग थे, तमाम फ़िरक़ों के लोग थे, सब एक जगह पे बैठ के उन्होंने अफ्तारी कराई है। ये इंटरफेथ हारमनी की बहुत बड़ी मिसाल है और ये मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल है, और ये साबित होता है कि हमेशा खान साहब ने पाकिस्तानियों की इज़्ज़त दी है, तमाम मज़हबों की इज़्ज़त दी है। बहुत आज की अफ्तारी कैसे लगा? आज की इफ्तारी हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज हमने खान साहब से मिला, डायरेक्ट उनसे अपने दिल की बातें की, उनको करीब से देखा, अपनी आंखों से उनको देख लिया, सुकून हो गया कि वो ठीक है। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, इसी तरह हमारे सरों पर उनका साया रहे। उन्होंने वर्कर को इज्जत दी है। वो जो पुराना सियासतदानों का एक चल रहा था कि सिर्फ MNAs MPAs को इज्जत दी जाती थी, वो नहीं उन्होंने किया। उन्होंने सारे वर्कर्स को बुलाया, अपनी टीम को बुलाया, उन लोगों को बुलाया जिन्होंने उनके लिए गिरफ्तारियां दी, उनके लिए डंडे खाए, उनके लिए सजाएं भुगती, उनके लिए सारा सफ़र करते आ रहे, उन लोगों को उन्होंने अपने पास बुलाकर बिठाया और इज्जत दी। आज हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। जी आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इफ्तारी मेरे लिए बहुत एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि मैंने खान साहब के साथ दस्तरखान पे बैठ कर की है। इससे बढ़ के मेरे लिए और एजाज़ की बात क्या होगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा खान माशाल्लाह सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, जिंदा सलामत है। अल्लाह ताला उनका साया हम पर दायम कायम रखे और खान साहब जो है उनको गर्म हवा का झोंका भी ना लगे। और खान साहब जो है वो हमारे रहनुमा हैं, रहबर हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जंग से हम आए हैं और खान साहब को जब देखा है तो हमें उनको देखते ही जो सुकून मिला है ना, कि उन्हें इस तरह से हमने देखा है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी भी दी है, अल्लाह ने उन्हें सेहत भी दी है और वो हमारे बीच मौजूद हैं। आज का अफ्तारी कैसे लगा? आज का अफ्तारी बहुत ज़बरदस्त थी। और इस वक्त जो है ना, मुझे तो थोड़ा सा एक लिहाज से रोना भी आ रहा था कि जो एक मुल्क की हालत हुई है कि गरीब को आटे का थैला जो है वो किस तरह से मिल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी तरफ खान साहब हैं जो कि अभी हुकूमत में ना होने के बावजूद यहाँ पे किस तरह की जबरदस्त अफ्तारी, इसमें इतनी डिशेज हैं और हर आम भी और खास भी सारे एक वही बन गया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। जी हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमें भी जो है ना, इंशाल्लाह हम झंग से आए हैं, हमें भी ये इफ्तारी सारी ज़िंदगी याद रहेगी। टीम बैरिस्टर साहब की तरफ से हम आए हैं और वो हमें हमेशा लेकर आते हैं और खान साहब से जो है ना हम बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और उन्हीं की बदौलत हम यहाँ हैं। माशाल्लाह खान साहब ने कारकुनान के दरमियान अफ्तारी किया। आज बड़ा ज़बरदस्त माहौल था।
भैया बताओ आज अफ्तारी कैसे लगा आपको? अफ्तारी तो अल्लाह का शुक्र है, जिस घर से ये अफ्तारी है, ये जिंदा पीर के घर से आज अफ्तारी हमने की है। चुप रहो एक और ये जो जिंदा पीर के घर से अफ्तारी है ना, ये सोमो सलात ही आज हमारे लिए मनो सलवा ही रही है। और अल्लाह का बड़ा करम है, आज हमने खान को बहुत करीब से देख भी ली है। जी आप ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। लंगर ही बमी होता इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा राजी दास मंगल मंगल जरा ख्याल आज का अफ्तारी कैसे लगा है? आज का मेरी जिंदगी का जो इफ्तारी है सबसे अच्छा लगा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि खान साहब के साथ दस्तरखान पे बैठ के मुझे जो है ना इफ्तारी का मौका मिला है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। खान साहब के साथ हमने इफ्तारी की है और जिंदगी का मकसद हमारा पूरा हो गया इंशाअल्लाह। खान साहब का साथ कारकुनान ने अफ्तारी किया। जी बताओ आज अफ्तारी कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आज की अफ्तारी, बिल्कुल जिंदगी में पहली बार अच्छी अफ्तारी थी खान साहब के। मैं यही बता रहा हूँ कि हम नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन आज मुस्लिम कम्युनिटी के साथ स्पेशली खान साहब के साथ अफ्तारी का बहुत मज़ा आया। और यही खान साहब ने कौम को इकट्ठा किया, तमाम जिसमें माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, आज सब मिलके अफ्तारी करें। इसका मतलब कौम मुतहद हो चुकी है और हकीकी आज़ादी के लिए इंशाल्लाह खान साहब। बड़ा ज़बरदस्त अफ्तारी था और बड़ा लजीज अफ्तारी था। उससे बढ़कर ये है कि हमने आज अफ्तारी जो है खान साहब के साथ की है और 27 साल के बाद खान साहब के साथ ये अफ्तारी किया और ये सारे पिछले दाग धुल गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त अफ्तारी लीडर के साथ अफ्तारी की है और लीडर ने आज हक अदा कर दिया। खान साहब तमाम वर्करों के साथ उनको अटेंशन मिली है, सब वर्करों के साथ उन्होंने बात की है। ये बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मैं ये समझता हूँ ये एक हकीकी लीडर की बात है कि हकीकी लीडर ही ऐसे अपने वर्करों के साथ बात कर सकता है। जो ये भगौड़े लीडर हैं वो अपने वर्करों से घबराते हैं, वो अपने वर्करों में इस तरह जा ही नहीं सकते। ये इमरान खान की बात है कि वो अपने वर्करों के अंदर आता है, वर्करों को इज्जत देता है और अहमियत देता है। बड़ा खुश नजर आ रहा है, आज का अफ्तारी कैसे लगा आपको? इमरान खान से मिलकर उसका नाम लोग खुश हो जाते हैं। हमने उसके साथ इफ्तारी की है, अपने कारकुनों के साथ उसने मुखातिब हुआ है और इतने कम लोगों में जब उसने बात की है, जो लोग 10 लाख लोगों से बात करता है उससे लोग पूरी दुनिया में खुश होते हैं। ये हम चंद दर्जन थे, उसने हमसे मुखातिब हुआ है। हमारे लिए आज का दिन तारीखी दिन है कि हमने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ आज इफ्तारी की है। जो उसने अफ्तारी की, इसलिए तमाम वर्कर और हम सब पार्लियामेंटेरियन खान साहब का शुक्र अदा करते हैं कि इस हालांकि उसकी जिंदगी को भी खतरा है और उस खतरे के बावजूद अपने वर्कर के साथ वो बैठा हुआ है। जी आप क्या कहना चाहता है? आज का अफ्तारी कैसे लगा? आज का अफ्तारी करने आप क्या कहना चाहते हैं? आज की अफ्तारी जो हुई है हमारे साथ इमरान खान साहब बहुत अच्छी हुई है। हमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम जो छोटे वर्करों के साथ भी एक जैसे हैं, हम किसी को भी बड़ा और हम छोटा नहीं समझते, हम सब के साथ बराबर हैं। माशाल्लाह अफ्तारी के बाद ये माशाल्लाह ज़बरदस्त जमात हो रहा है, बाजुमात नमाज अदा कर रहा है। ये मनाजर भी हम आपको दिखा रहा है ज़मान पार्क से। आज अफ्तारी जो हमने की है तो मेरे ख्याल में जितना मेहनत हमने मर्दान से इधर आने तक 2, 3, 4 दफ़ा हम इधर आए हैं तो सारा सिला हमें आज के शाम को मिला है। यार आज के शाम को हमें ये सारा सिला मिला है। जितने भी हमने तकरीबन 5-6 महीनों में हमने जितना मुशक्क़त किया हुआ है, यकीन करें आज हमारा थकावट, हमारा जो प्यास था, हमारा जो भूख था, सिर्फ खान को एक झलक देखने पे सब कुछ ख़त्म हो गया और सिर्फ एक घूंट पानी का किए, उसके बाद फिर सिर्फ उनको देखते रहे। हम सारे जितने भी लोग थे उसको सिर्फ देखते रहे। हमारे खान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक कशिश है कि उसको बंदा देख लें तो फिर उसको अफ्तारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अफ्तारी कैसे लगा है बाबा? बहुत ज़बरदस्त हुआ इंशाल्लाह माशाल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बड़ी ज़बरदस्ती बड़ी अच्छी अफ्तारी हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सब अवेलेबल यानी कि सब चीज़ भी आया है। अब हम खान साहब की मोहब्बत के लिए आए हैं। खान साहब की मोहब्बत में ये सब जितने भी दोस्त हैं ख़ुद भी आए हैं, दोस्तों को भी दावत दे रहे हैं कि भाई आप ना खान साहब की हिसाब के साथ आया। आज का अफ्तारी ने हमारा 3 महीने का जो पैसा पूरा कर दिया है और ये फैज हमें मिल गया है और इस फैज के थ्रू इंशाल्लाह जब तक खान ये जंग नहीं जीतेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।